say promises are meant to be kept. And in Sahil's language, we say, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. In English, we say, your face fascinates me, making me forget everything around me. And in Sahil's language, we say, तेरे Yes. चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें. Siddharth, sometimes I feel I'm a poet only for a moment or two. My story, my existence will also last only for a moment or two. Any guesses? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है. Sometimes a feeling emerges in my heart that you were created by God only ख्याल for आता me. है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए. वाह वाह वाह. इंटेलिजेंट ऑडियंस. ये जो सदाबहार गीत हैं, इन सदाबहार गीतों के शब्द हमारे साथ आज तक जिंदा हैं, हमारे साथ रहते हैं. और आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और करने वाले हैं. We are going to talk about poetry and cinema, the work of Sahir Ludhianvi the Great, and we'll be having Pankaj Saxena ji in conversation with Poonam Saxena ji and Meena Srivastav. जोरदार तालियों से उनका स्वागत हम इस मंच पे करेंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा, Pankaj Saxena ji is an alumnus of the Film and TV Institute of India. Do we have Pankaj ji with us here? Pankaj ji, मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आप अपनी जगह लें. जोरदार तालियां होनी चाहिए. He is an alumnus of the Film and TV Institute of India. In a professional career spanning over 4 decades, he has written, edited, directed, and produced a large number of documentaries, short fiction films, television programs, public service advertisements, and news stories. He has also held senior management positions, including those of Vice President at the Discovery Channel, Head of Programming at the BBC Worldwide, and Executive Director at Lok Sabha TV. An intrepid traveler? Yes, that definitely calls for an applause. Please keep it going. An intrepid traveler and a published writer, Pankaj ji is currently based in Delhi, working at the National Film Development Corporation as their artistic director of the programming department. So it's a pleasure for us to have you here with us. A round of applause, please, everybody. Miss Poonam Saxena is a journalist, writer, and translator. She's had a distinguished career with the Hindustan Times, where she launched and edited the HT Sunday magazine, Brunch, for over 10 years, before moving on to edit the weekend section. She's written extensively on popular culture, film, television, books, and literature. She continues to do a regular column for Hindustan Times, which looks at our past through the prism of Hindi literature and Hindi cinema. She's translated books from Hindi to English, and her translations include Dharamveer Bharti's Gunahon Ka Devta, Rahi Masoom Raza's Scene 75, and The Greatest Hindi Stories Ever Told. She was also the co author for filmmaker Karan Johar's memoir, An Unsuitable Boy. Moving on, we would like to invite on stage Dr. Neena Srivastava ji. She is a distinguished professor of vocal music and an A-graded artist of All India Radio, brings a rich legacy as the granddaughter of the renowned poet Sri Maksudan Lal Roshan Shamshabadi. She is also the co-editor, composer, and singer of Ghazals Sangre Cham-e Roshan. Dr. Neena has blended her passion for music into the academic realm by taking on the role of a PhD guide at Barkatullah University, Bhopal, as well as Raja Mansingh University, Gwalior. She has also done research on the effects of music therapy in intellectually and physically disabled or specially able children and the addiction centers. Dr. Nina Ji will be joining us in a couple of minutes. Meanwhile, I'll be requesting Sir and Ma'am to please begin the conversation. And we must grace this beautiful session with a round of applause, everybody. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. It's wonderful to be here.
Many thanks to the Bhopal Literature and Arts Festival for inviting us here. And आज शाम का जो ये session है साहिर लुधियानवी में, I don't think I need to give any introduction to Sahir Ludhianvi. I think आप सब वाकिफ हैं उनके गानों से, उनकी जो कविताएं हैं, जो शायरी है. So without wasting any more time, let me plunge into the conversation with Pankaj. Pankaj, let's start with a slightly wide-ranging question. What is your take on Sahir Ludhianvi, the man, the poet, the lyricist? What are the connections between these three people who are in Sahir, you know, the person? जी पूनम जी, थैंक यू वेरी मच. आई विल हैव टू, हम लोग जो सुबह कल बात कर रहे थे, जस्ट वांट टू हार्क बैक टू दी व्हाट इज समटाइम्स कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा. ये सब वहीं से आ रहा है, उसी का ये रेफरेंस है. हम लोग जब साहिर पे प्रोग्राम करते हैं, तो व्हेन आई लुक एट द पीपल हु आर ऑफ माय एज ग्रुप और माय विंटेज, देन आई एम वेरी हार्टेंड बिकॉज ये वो लोग हैं जो साहिर के काम से वाकिफ हैं, उसको जानते हैं. दे आर आवर स्ट्रेंथ्स. And I'm also very inspired with the presence of the youngsters because a lot of this conversation is a message to the youngsters to sort of, look back on the heritage and recognize. So I'm particularly delighted that this audience that we have this evening comprises of people of who appear to be familiar with Sahir, which is great for us, and also young people who have taken the trouble of spending their evening with us here in Sahir. So thank you all for coming. गोल्डन एज की जो मैं बात कर रहा था पूनम जी, हम लोगों ने वी हैव हैड सो मच कॉन्वर्सेशन ऑन द गोल्डन एज. जब रहमान साहब को ऑस्कर मिला था, 2008 की शायद बात है, काफी साल हो गए उस बात को, उस गाने के लिए. तो हमारे जो दोस्त अमेरिका में हैं खास तौर पे, और यूरोप के भी कुछ, उन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी और उन्होंने बोला कि आपके मुल्क को जो है ऑस्कर मिला है, कभी मिलता नहीं है, तो आपको मिला है तो बड़ी अच्छी बात है. और हमने थोड़ी रिसर्च की है, तो गाना भी बड़ा अच्छा है, ये जय हो जय हो. मुझे वो याद नहीं है, आजा शामियाने के तले जरी वाले आसमाने के तले, बड़ा अच्छा उन्होंने गाना लिखा. सबके शब्द है. जी जी जी. तो हमने कहा कि बहुत, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये ना समझें. तो उन्होंने बोला कि आपका जो ये आपने स्टार्ट किया ये म्यूजिक और सॉन्ग्स बड़ा अच्छा है. तो हमने कहा कि ये सही है, लेकिन आप ये ना समझें कि हमारा म्यूजिक और फिल्म म्यूजिक जो है वो 2008 से शुरू होता है. आपको नहीं पता क्योंकि उसको ऑस्कर नहीं मिला, मगर हमारा म्यूजिक बहुत पुराना है. 1931 में जब सिनेमा में साउंड आया था, तो वो जो शुरू की फिल्में बनती थी उनमें तो 20-20, 30-30 गाने होते थे. तो ये एक ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन उस सिनेमा से भी पहले शायद पारसी थिएटर से चली आ रही है, और उससे भी पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से चली आ रही है. तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग अ ट्रेडिशन इन अ फिल्म्स. और उस एरा को गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा इसलिए कहते हैं, ऑफ कोर्स इसलिए कहते हैं कि वो फिल्में बड़ी मकबूल हैं और बड़ी अच्छी हैं. लेकिन वी नीड टू नो साउंड जब आया तो सिनेमा कुछ बदला, और कुछ चीजों का एक स्ट्रक्चर बना. यानी कि कुछ लोग आए जिन्होंने बड़े स्टूडियोज खड़े किए, कुछ साउंड इक्विपमेंट इंपोर्ट हुआ, कुछ सिनेमेटोग्राफिक इक्विपमेंट इंपोर्ट हुआ, कुछ प्रोड्यूसर्स आए जिनको पता था कि पैसे कैसे जुटाने हैं फिल्म बनाने के लिए, फिल्म कैसे बनानी है, फिल्म की लेंथ क्या होनी चाहिए, 2.5 घंटे होनी चाहिए, उसमें 8 गाने होने चाहिए, एक पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिनेमा हॉल में कूलिंग होनी चाहिए, फिल्मों की पब्लिसिटी कैसे होनी चाहिए, रेडियो से कैसे जुड़ना चाहिए, हमारे गाने रेडियो पे बजें, वहां लोग उसको सुने, उन गानों को सुनने के बाद पिक्चर को देखने की तमन्ना पैदा हो, वो पिक्चर देखने के लिए आए. तो ये सारी चीज थी हमारे उस गोल्डन एरा के सिनेमा की. और उसकी एक बड़ी यूनिक चीज जो है वो है हमारे गाने, जो पिक्चरों के गाने. मैं गाने पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आज गाने की बात होने वाली है, लेकिन उसमें सिनेमेटोग्राफी का, एडिटिंग का, आर्ट डायरेक्शन का, एक्टिंग का, सब सब चीजें उसमें एक तरह से अपने शबाब पे थी. गानों के बारे में जहां तक बात है, हमारा एक तरीका है, वो हमारे सिनेमा का बड़ा यूनिक तरीका है. उस जमाने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50-60s में, यूरोपियन फिल्म में, अमेरिकन फिल्म में, जापानीज फिल्म्स में, कहीं की फिल्म में गाने होते ही नहीं थे. बिल्कुल वो गाने यूज नहीं करते थे. हमारे यहाँ तो गाने होते थे, और हमारे एक्टर्स जो थे वो कहानी के बीच में गाना गाना शुरू कर देते थे, और हर आदमी गाना गाता था. वो कोई भी कैरेक्टर हो, वो सिंगर हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर गाता था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर भी गाना गाता था.
जज साहब भी गाना गाते थे, बावर्ची भी गाना गाता था, नौकर भी गाना गाता था, सब लोग गाना गाते थे और किसी और की आवाज में गाते थे। किसी इस उस इंसान की आवाज में गाना गाते थे जो आपको पता नहीं वो कौन इंसान है। कुछ फिल्मों में एक्टर एक ही फिल्म में 2 लोगों की आवाज में गाना गाता था। आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना जी एक गाना मुकेश की आवाज में गा रहे हैं, एक गाना मन्ना डे की आवाज में गा रहे हैं। ये सब हमारे लिए टोटली एक्सेप्टेबल है, हम इसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, हजम नहीं हो रही, तो वो हमारे सिनेमा को अच्छा सिनेमा नहीं मान रहे। इसलिए हमको ना ऑस्कर मिल रहा है, ना हमको कैन में कोई अवार्ड मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हमारा सिनेमा टोटली इग्नोर्ड है। और हमने उस चीज को जब देखा कि दुनिया इस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो हमको लगा कि ये शायद अच्छी चीज नहीं हम कर रहे। तो हम एक तरह से उसको लेकर के एम्बैरेस होना शुरू हो गए और हमारे सिनेमा में गाने कम होते चले गए और एक ऐसी स्टेज आ गई कि गाने होते ही नहीं थे, होते थे तो बहुत खराब होते थे। तो जो लोग जानते हैं, जिन्होंने वो जमाने का सिनेमा देखा है, उनको लगता है कि हमने एक अपनी हेरिटेज को लूज कर दिया, क्योंकि हमें कोई आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। उन्होंने कहा अच्छा नहीं है, तो हमने भी मान लिया अच्छा नहीं है, बात खत्म हो गई। ये वैसे बात है जैसे खजुराहो के मंदिरों पे धूल जम जाए और आप कहें कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। तो जब वो धूल हटाते हैं, वो मंदिर हम देखते हैं, तो हमको लगता है तो कमाल का काम है। देन यू आर डिस्कवरिंग योर हेरिटेज। ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अभी आएंगे नीना जी, ये I hope it is going to be a very entertaining program. But the purpose of this evening is not to entertain. The purpose of this evening is to find a lost heritage, and that is why I'm saying young people are very important, because you have to carry this forward. क्योंकि हमारे, मैं जैसे कह रहा हूँ, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उपजी है, पारसी थिएटर से उपजी है, ये बहुत पुरानी परंपरा है, इसको लूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो मैंने शायद कुछ और ही बात करने लग गया। अब साहिर साहिर के बारे में आपने पूछा, तो साहिर इज वन ऑफ द एमिनेंट पोइट्स ऑफ द गोल्डन एरा। उस जमाने में और भी बड़े अच्छे शायर थे, कैफी आजमी साहब थे, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, शकील बदायूनी साहब थे, बहुत लोग थे। फिल्म लिरिसिस्ट को क्या आना चाहिए? फिल्म लिरिसिस्ट को जिंदगी की समझ होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स की समझ होनी चाहिए, सर्कमस्टेंसेस की समझ होनी चाहिए, और उसको फिल्म की सिचुएशन की समझ होनी चाहिए कि फिल्म में अब ये सिचुएशन है, इनके ये रिलेशनशिप है, ये पहले प्यार करते थे, प्यार नहीं करते, तो एक गाना आएगा वहां पे। और उसके पास एक अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए ताकि वो इन थॉट्स को कन्वे कर सके। ये सारी चीजें मजरू में भी थी, कैफी में भी थी, सब लोगों में थी। साहिर की खुलूसियत ये है, उनकी यूनिकनेस ये है कि वो अपनी समझ को फिल्मों के गानों में लाने से बिल्कुल घबराते कतराते नहीं। उन्होंने अपनी आप देखेंगे जब हम बात करेंगे उनकी, ये बहुत सारी रीडिंग मैं करने वाला हूँ, होपफुली इट विल नॉट बी वेरी बोरिंग। बट आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की समझ को, अपनी जिंदगी की फिलॉसफी को अपने गाने में बहुत उतारा है। मैं जस्ट रीड दिस वन टू यू। ये सबसे ज्यादा कोटेड अ, उनका कपलेट। दुनिया ने तजुर्बात और हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ। ही सिंह, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको वापस दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट ही लिव्ड बाय, सो ही इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस। एक फिल्म का मैं आपको कोट कर देता हूँ। ये प्यासा फिल्म की बिल्कुल शुरुआत है, जिन्होंने देखी हो नहीं देखी हो तो देखें जरूर। ये हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग और नूर में डूबी हुई राहें, ये फूलों का रस पी के मचलते हुए भंवरे, मैं दूं भी तो क्या दूं तुम्हें ऐ शोख नजारों, ले दे के मेरे पास कुछ आंसू हैं कुछ आहे। दिस सेट्स द टोन फॉर प्यासा। इसमें कॉन्ट्रास्ट है, वो कह रहा है दुनिया में बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं, मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं। दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग सॉर्ट। ये गुरुदत्त में ही ताकत थी कि वो इस डिप्रेसिंग नोट पे एक फिल्म को शुरू कर रहा है, जो उसकी सबसे एम्बिशियस फिल्म। तो या मोस्टली आई मीन दीज आर द यूनिकनेस ऑफ साहिर। What are the early influences that you see in Sahir's evolution as a poet? One is, of course, his domestic situation, which is his mother and his father, and his father married 12 times. His mother was his father's 11th wife, and उनको बहुत सताया उनके पिताजी ने. So he was very attached to his mother. So the mother figure is very important in Sahir's life. And he was also influenced, of course, by a lot of poets of his generation. Majaz, kitne sare, Jan Nisar, Akhtar, वगैरह. So, do you want to shed a little light on that?
जी, ज़रूर, इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए। जो शायर साहिर बने या बना, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो उस फैमिली का प्रोडक्ट है जो अनहैप्पी फैमिली है। और ये किसी के लिए बहुत नेगेटिव चीज़ हो सकती है। शायर के लिए भी शायद नेगेटिव ही रही होगी, बट ही टर्न्ड इट इंटू अ क्रिएटिव पावर। उनके फादर जो फजल मोहम्मद साहब थे, ही वाज अ जमींदार एंड ही वाज नॉट अ पर्टिकुलरली नाइस पर्सन। उन्होंने, आपने बताया 12 शादियां की थी, पता नहीं क्यों की थी, क्योंकि औलाद तो कोई नहीं थी। बहुत सारी शादियां कर ली थी। 11वीं ये सरदार जो थी उनकी, साहिर की जो मदर थी, she was the 11th bride and I think she was also married just to so that he has a progeny. इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो जमींदार किस्म के आदमी थे, बड़े कामयाब भी नहीं थे। वो अपनी जमीनें बेच बेच के गुजारा करते थे एंड ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिबॉचरी। तो कोई भी औरत जो है वो देखेगी कि उसकी एक औलाद भी हो गई है और उसका मियाँ जो है वो जमीनें बेच के गुजारा कर रहा है, तो वो ये देख रही है कि एक समय आएगा कि इसकी सारी जमीनें बिक जाएंगी और हम लोग भिखारी बन जाएंगे। तो शी प्रोटेस्टेड एंड दैट रिलेशनशिप नोज डाइव्ड कंप्लीटली। साहिर के रिलेशन नेचुरली अपने डिबॉच जमींदार फ्यूडल फादर से अच्छे नहीं थे और बाद में उन्होंने इसके बारे में लिखा है। सो जस्ट टू नो व्हाट ही थॉट ऑफ हिज फादर, आई एम गोइंग टू रीड दिस। दिस इज क्वाइट अमेजिंग एक्चुअली। ये कह रहा है कि मैं वापस आया हूं वहां पे जो जो मेरी जहां से मैं पैदा हुआ था। आइए नीना जी, आ जाइए। ये जागीर नाम की पोएम है। तलखियां आप जानते हैं, काफी लोगों ने सुना है। तलखियां जो है शायर की एक पोइट्री का कलेक्शन है। जागीर इज फ्रॉम तलखियां। तो तलखियां जो है उसने 23 साल की उम्र में लिख दी थी। तो ये एक बहुत यंग आदमी की, मैंने कहीं लिखा था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसमें और भगत सिंह में मुझे बहुत कॉमनैलिटी नजर आती। भगत सिंह ने 22 साल में, 23 साल में वो बम फोड़ दिया था असेंबली। दीज वर पीपल ऑफ ग्रेट कन्विक्शन। उसने 22-23, मुझे हैरत होती है, मुझे ये पोइट्री समझने में बहुत दिक्कत होती है अभी। उसने 22-23 साल में क्या क्या लिख दिया था। तो ये जागीर की मैं आपको लाइनें बता रहा हूँ। मैं इसका बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं करूंगा। कहीं पे साहिर से किसी ने कहा था कि आप जो है लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर लीजिए फिल्मों के लिए। तो उन्होंने कर भी दी थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं भी करूंगा। जैसे वो जोहरा जबी, ओ मेरी जोहरा जमी, तुझे मालूम है तू अभी तक है हंसी में। तो लोगों ने कहा आप जोहरा जबी का कुछ सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको रहने दो, क्योंकि लोग बाकी तो समझ जाएंगे। तो जब समझ जाएंगे तो वो जोरा जबी का मतलब भी ढूंढ लेंगे। एक्चुअली वोकैबुलरी को बढ़ाने का ये अच्छा तरीका है। आप सब कुछ सिंप्लीफाई कर लें तो लोग क्या, फिर मतलब रह नहीं जाएगा। आप हलवा उनको खिला देंगे, स्पून फीडिंग कर देंगे। तो ही वाज लाइक दैट। तो इसलिए इस सेशन में इसको ट्रांसलेट करना बहुत पॉसिबल, इसको इसका तर्जुमा करना या इसको सिंप्लीफाई करना बहुत पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम हम लोग के पास है नहीं। बट यू विल गेट द मीनिंग, सो इट इज ऑल राइट। तो जागीर से मैं पढ़ रहा हूँ, लंबी पोइट्री है, छोटा पढ़ रहा हूँ। फिर उसी वादिये शादाब में लौट आया हूँ, ही इज रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, जिसमें पिन्हा मेरे ख्वाबों की तरफ गाहें हैं, मेरे अहबाब के सामान तायुश के लिए, अय्याशी के सामान के लिए शोख सीने हैं, जवा जिसमें हंसी बाहें, डिबॉचरी। सब्ज खेतों में ये दुबकी हुई दोशीज़ाएं, यंग गर्ल्स। सब्ज खेतों में दुबकी हुई ये दोशीज़ाएं, इनके शरियानों में किस किस का लहू जारी, इनके वेन्स में किसका खून बह रहा। हु आर दीज गर्ल्स। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। ये लंबी पोइट्री है, इसलिए मैं कुछ ही पार्ट उसका पढ़ रहा हूँ। मैं उन अजदाद का बेटा हूं, अजदाद मीन्स पेरेंट्स, पूर्वज। मैं उन अजदाद का बेटा हूं जिन्होंने पहम अजनबी कौम के साये में हिमायत की है, साये की हिमायत की है। अजनबी कौम कौन? अंग्रेज। मैं उन अजदाद का बेटा हूं जिन्होंने पहम अजनबी कौम के साये की हिमायत की है, हुज्र की साथ इन नापाक से लेकर अब तक हर कड़े वक्त में सरकार की खिदमत की है। 1943। ताक पर रेंगने वाले ये फासुर्दा ढांचे, इनकी नजरें कभी तलवार बनी है न बनी। इनकी गैरत पे हर एक हाथ झपट सकता है। इनके अबरू की कमाने न तनी है न तनी। हाय ये शाम, ये झरने, ये शफक की लाली, मैं इन आसूदा फजाओं में जरा झूम न लूं। वो दबे पांव इधर कौन चली आती है,
बढ़ के उस शोख के तरशे हुए लब चूम न लूं। मैं सब कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी को भी उठा सकता हूँ। दिस इज व्हाट ही सेइंग, ये मेरे पूर्वज हैं। इज अ मैन इज नॉट प्राउड ऑफ हिज lineage और हिज हेरिटेज। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना नाम जो अब्दुल हई था वो छोड़ के साहिर रख लिया था, बिकॉज साहिर मीन्स मजिशियन। तो वो शायद बहुत कम उम्र में, ये 16-17 की में इन्होंने अपना तखल्लुस बना लिया था। बट कई लोगों का कहना है कि इन्होंने ये नाम इसलिए रख दिया था कि ये अपना अब्दुल हई से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। बाप का दिया हुआ नाम था। और उसके पीछे और भी कहानियां, इनके बाप इनको बहुत गालियां देते थे, मतलब इनको कत्ल करने की कोशिश भी की गई थी। तो ही वाज फेड अप एंड ही जस्ट डिडंट वांट टू बी कॉल्ड अब्दुल हई। उसमें बड़ी लंबी कहानी है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, अब माँ की बात करते हैं। आपने माँ से शुरू किया था, हम लोग आज बात कर रहे थे। साहिर की बर्थडे 8 मार्च की है, इट्स अ वुमेन्स डे। उस दिन पैदाइश हुई थी। माँ ने बाप के हाथों बड़े जुल्म सहे। शी सफर्ड एंड ही सॉ इट एंड ही imbibed it. He imbibed it to the extent सब लोग जानते हैं, he didn't ever really have a relationship with another woman. मतलब चीजें शुरू हुई मगर वो कहीं किसी मुकाम तक पहुंची नहीं। माँ की कैफियत को मुझे जीने दो नाम की एक फिल्म में इन्होंने इस तरह बयां किया। ये फिल्म का गाना है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। मेरे मुन्ने मेरे गुलजार के नन्हे पौधे, तुझको हालात की आंधी से बचाने के लिए आज मैं प्यार के आंचल में छुपा लेती हूँ। कल ये कमजोर सहारा भी ना हासिल होगा। दैट वुमन विल डाई। कल ये कमजोर सहारा भी ना हासिल होगा, कल तुझे कांटों भरी राह पे चलना होगा, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ देके परेशान सी हो जाती हूँ। परेशान हो रही, बच्चा बड़ा मेरा हो जाए, कैसे होगा, इस पे क्या इसके क्या हाल बनेंगे। ये वैसे इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा है, अजीब सा किस्सा है। साहिर लुधियानवी हवाई जहाज से ट्रैवल नहीं करते थे, वो कार से जाते थे, सब जगह कार से जाते थे, बहुत दूर दूर कार से जाते थे। तो ये जब ग्वालियर मुरैना भिंड के इलाके में जा रहे थे तो डाकू ने इनको कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था। और वो डाकू तो ये सब डर गए, इनको लगा कि पता नहीं इनका क्या हाल बना देंगे। तो डाकुओं ने कहा कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आपसे आपकी पोइट्री सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपका ये मुझे जीने दो गाना सुना है और ये गाना हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो इन्होंने इनको खूब खिलाया पिलाया और इनसे पोइट्री सुनी, फिर सुबह उनको छोड़ दिया। ये शाहिर ने खुद लिखा है। और ये पूनम जी का फेवरेट है। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? अ, मैं वो 4-5 लाइनें पढ़ देता हूँ त्रिशूल के गाने की। ये उल्टा है, जो पहले कह रही थी कि मैं परेशान हूं, मैं तुझे कैसे बचाऊंगी, मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, वो सब ये उल्टा है। मैं तुझे रहम के साए में न पलने दूंगी, जिंदगानी की कड़ी धूप में जलने दूंगी, ताकि तब तक के तू फौलाद बने, माँ की औलाद बने, माँ की औलाद बने, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। बताइए त्रिशूल के बारे में। आप सबको पता ही होगा ये फिल्म त्रिशूल का गाना है। एंड इफ यू हैव सीन त्रिशूल यू विल नो द स्टोरी ऑफ द फिल्म कि उसमें वहीदा रहमान जो है, शी हैज बीन डिच्ड बाय द मैन शी वाज सपोज्ड टू मैरी, प्लेड बाय संजीव कुमार। तो वो एक अमीर लड़की से शादी करके उनको बीच राह में छोड़ देता है। एंड शी इज प्रेग्नेंट एंड शी गिव्स बर्थ टू अ बॉय, एंड दैट बॉय ग्रोज अप टू बी अमिताभ बच्चन। Trishul is one of my favorite films. तो उसमें she sings this song to Amitabh that I want to make you into such a strong person कि जिंदगी में जो भी आंधियां आए तूफान आए you will be able to withstand them. So this is a very powerful song, which is also a song about a mother. तो once again हम साहिर की गानों में देखते हैं कि माँ का जो एक दर्जा है वो उनके लिए कितना ऊंचा था. In fact, I think his mother passed away in 1976, if I'm not mistaken, और कुछ ही साल बाद वो भी चल बसे. His mother was really the center of the universe. In fact, there is a famous song of his, औरत ने जन्म दिया मर्दों को. हेलो, माफ़ी चाहूँगी, बहुत ट्रैफ़िक में फँस गई थी।
एक तो ये सॉन्ग है औरत ने जन्म दिया मर्दों को, उसके बाद एक और भी मैं बताऊंगी जो वुमेन प्रोटेक्ट करती है कैसे। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मतला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। आगे भी जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे कोपर बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। थैंक यू। इसका एक और, इसके बिल्कुल मुझे लगता है एकदम दूसरा पक्ष है जो वुमेन प्रोटेक्ट करती है, जैसे मैडम ने बताया कि अभी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसी से एक गीत है। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, ये दुख ये वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। Pankaj, let's try and trace Sahir's journey from a romantic young man to a revolutionary poet, a people's poet. ये कैसी उनकी यात्रा थी? जी, ये कमाल की बात है, ये सिर्फ 4 साल में हो गया। कैसे हो गया वो मैं आपको यहाँ पढ़ के बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। ये गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ते थे, सन 37 से 41 की बात है, अंग्रेजों का जमाना था। दिस इज ए 16th ईयर टू 19th ईयर, ये 4 साल के हैं। तो व्हेन आई विल रीड सम पोइट्री आपको बिल्कुल आइडिया मिलेगा कि कैसे ये ट्रांजिशन हुआ। इनकी महबूबाएं थी कॉलेज में 2, एक महेंद्र चौधरी जो हिंदू थी, कांग्रेस लीडर की बेटी थी वो, और एक ईशर कौर जो सिख थी। और 2 थी तो मतलब आप समझिए 4 साल में ज्यादा देर रहते भी नहीं थे, या वो नहीं रहती थी, इस केस में तो वो नहीं रहती। तो ये इन्होंने लिखा है महेंद्र चौधरी के लिए। सामने एक मकान की छत पर मुंतजिर कोई एक लड़की है, मुझको उससे नहीं ताल्लुक कुछ, फिर भी सीने में आग सी भड़की। 16 साल का लड़का। ये वो शायर नहीं है जिसको हम जानते हैं। बहुत साल बाद 57 में गाना लिखा। ये छत पे लड़की, मुंतजिर सी लड़की जो छत पे खड़ी है, ये 57 में गाना है, छत का जिक्र है। तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी है। वो कह रही है अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के के चांद बेरी छिप जाने दे, मतलब लेट द नाइट बी सो लाइक लेट और डार्क कि चांद भी छुप जाए, फिर हम मिलेंगे। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कमारियों के दिल मचले। तो ये जो भी आपने बात कही ना फेमिनिज्म की, या
ये अब ये उर्दू का शायर है, मतलब आप उर्दू के समाज को समझिए। 50 में उर्दू का जो समाज था, ये जो उर्दू बोलने वाले लोग थे, बड़े उस तरह से क्या कह सकते हैं, कंजर्वेटिव लोग रहे होंगे। उसमें ये लड़की लड़के की जुल्फ का जिक्र कर रही है, तो है ही नहीं किसी उर्दू पोइट्री में। जुल्फ तो लड़की की होती है, लड़के की जुल्फ कहाँ से आ गई? और वो उसके कसीदे पढ़ रहे लड़की की जुल्फ के, तो ये लड़के की जुल्फ के कसीदे पढ़ रही है। शी इज मेकिंग एडवांसेस ऑन दैट यंग मैन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बरसात की रात में एक गाना है, वो भी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। ही इज डिस्क्राइबिंग पोइट्री। देखिए, लड़का बड़ा हो रहा है, पोइट्री को अब ना वो छत पे खड़ी लड़की के पीछे चक्कर में नहीं है, अब वो कुछ और कह रहा। बरसात की रात मधुबाला पे पिक्चराइज हुआ है। इमेजिन इफ यू नो मधुबाला, देन यू कैन थिंक ऑफ मधुबाला। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, ही इज वॉचिंग अ गर्ल who's wet in rain। सुर्ख आंचल को दबाकर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। जलता हुआ तीर, आप वो सारे वीएफएक्स याद कीजिए फिल्मों। जलता हुआ तीर है, जलता हुआ तीर उसने सब 50 में कंसीव किया है। आग पानी में लगाते हुए हालात की रात। पानी में कोई आग लगा सकता है? पानी में सिर्फ एक बहुत खूबसूरत लड़की इनके तस्वुर में आग लगा सकती है। पानी पानी में लगे आग, तो ये तो बड़ा अजीब हैरत अंगेज नजारा है। आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। वो ऐसे जिसमें पानी में आग लग रही, कौन भूल सकता है उसको कभी? एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, ये एक जो पहली मीटिंग है एक किसी सुंदर लड़की के साथ, उसको ये डिस्क्राइब कर। अब मैं उस आर्क की बात कर रहा हूँ, वेर ही इज मेच्योरिंग एज अ रोमांटिक। परछाइयाँ आपने सुना होगा। परछाइयाँ लंबी पोइट्री है, 10, 12, 15 पेज की पोइट्री है। इट्स अ पोएम अगेंस्ट वॉर। उसकी हम बात बाद में करेंगे, मगर ये परछाइयाँ से मैंने लिया है। तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में। ये व्हाट यू नो, छत पे खड़ी लड़की से लेके कहाँ तक आ गया है बहुत कम समय में। मैं फूल टांक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकी जाती है। विद हैप्पीनेस यू आर लुकिंग, आंख झुक रही है तुम्हारी, तुम्हारी आंख मसरत से झुकी जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मेरे गले में तुम्हारी गुदाज बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लब के साए हैं। व्हाट इंटीमेसी इज दिस! तो गुमराह में अब ये लबों के साए जो हैं और गुदाज बाहें जो हैं, दिस इज दिस इज अगेन आई एम सेइंग वोकैबुलरी। गुमराह में यूज किया उन्होंने। गुमराह इज अ फिल्म दैट वाज मेड मच लेटर, आई थिंक अर्ली 60s में शायद पिक्चर बनी थी। उसमें गाना है, वो दिल में तेरे दिल की धड़कन, आंख में तेरी आंख का जादू, लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। व्हेन आई कैन स्मेल योर ब्रेथ, इट इज हाउ क्लोज दे आर। अभी क्या है, उस जमाने में किसिंग अलाउड नहीं थी फिल्मों में, सेंसर अलाउ नहीं करता था, काट देता था, किसिंग यूज नहीं करते थे। जुल्फ तो लब पर तेरे लब के साए, पोइट वो काम कर रहा था जो एक्टरों को करना चाहिए। अब अब अलाउ हो गया है, तो ये पोइट्री कोई नहीं लिख रहा, लिखेगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बैन कर देना चाहिए, कुछ बैन कर देना चाहिए। जुल्फों का हर पेंच बुलाए, वो कह रही जुल्फों का हर पेंच। जुल्फ में कितने पेंच हो सकते हैं आप सोचिए, बालों में हाउ मेनी नॉट्स, इंटैंगलमेंट्स कैन बी देयर, मिलियंस ऑफ देम। जुल्फों का हर पेंच बुलाए, मेरी जुल्फ का हर पेंच तुम्हें बुला रहा है। आंचल का हर तार पुकारे, मेरे जो आंचल है, जो मेरा अटायर है, जो ड्रेस है, हर तार, एवरी थ्रेड इज कॉलिंग यू। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस कॉलिंग? आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकार। इसको आप बहुत, मतलब फिल्म के गानों को बहुत सीरियसली लेते नहीं है आजकल, तो कोई भी नहीं लेता। मगर मैं कह रहा हूँ, इनको अगर आप देखेंगे तो बस इसको आप इसका तात्पर्य ही निकालते बैठे रह जाएंगे, सारी रात निकल जाएगी। उसके बाद एक बहुत जल्दी से मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, समय कम है। कहीं परेशान हो रहा है कि मेरी महबूबा मुझे छोड़ के ना चली जाए। मैं आगे बताऊंगा आपको। महेंद्र चौधरी डाइड वेरी यंग। ये मताए गैर है, इसका नाम है मताए गैर, तलखियां में है। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, ख्वाबों के झरोके, द विंडोज ऑफ ड्रीम्स, द ड्रीम्स आर द विंडोज टू योर सबकॉन्शियसनेस। ये साइमन फ्रॉइड ने कहा है। सपनों से हम अपने सबकॉन्शियस को समझ सकते हैं। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में मेरा गुजर है कि नहीं? आई एम आई इन योर ड्रीम्स।
तू जो मेरे सपनों में है, डू आई एग्जिस्ट इन योर ड्रीम्स, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। अपनी निगाहों से कोई कैसे पूछ सकता है? लुक इनटू योर ओन आईज एंड टेल मी, क्योंकि आपकी आंखें सच बोलेंगी, मैं वो सच सुनना चाहता हूँ। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। बहुत सुंदर है। मरकट की सरजमीन आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगेन ही इज अ वेरी यंग बॉय, ही इज लॉस्ट हिज गर्लफ्रेंड, शी इज डाइड ऑफ टीबी। उसके फ्यूनरल में गया है, देखा है, हिंदू लड़की का फ्यूनरल हो रहा है, उसकी चिता जल रही है, ये मुस्लिम लड़का वहां गया। ये बहुत है, इसको पढ़ते मुझे रोना आ जाता है। ये दोपहर, ये धूप, ये वीरान आसमां, तू ही बता के अब मैं पुकारूं किसे यहाँ। कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गईं, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गईं। अंबर सिरिश्त गेसुए शब गूं भी जल गए, वो दीदा हाय मस्त पुरस्सू भी जल गए। मासूम कहकहों का तरन्नुम भी मिट गया, झींपी हुई नजर का तबस्सुम भी मिट गया। अब मेरी आरज़ुओं की जन्नत ये राख है, सरमाए हुसूल मोहब्बत ये राख है। ये मेरी शायरी की कहानी की राख है, ये राख एक पाक जवानी की राख है। ये राख मेरे दिल की तमन्ना की राख है, ज़ौक़े तलब की जुर्रत तन्हा की राख है। इस राख में फलक के सितारों का नूर है, इस राह में ज़मीन की मासूम हूर है। अब लास्ट दो सुनिए, कुछ कहीं और जा रहा है, किसी और लेवल पे जा रहा है। शोले फिर एक बार इसी राख से उठा, कभी चिता फिर से जलती है बुझने के बाद। कह रहा है शोले फिर एक बार इसी राख से उठा, और खत्म कर दे मेरे मसाइब का सिलसिला। मुझे भी जला दे इसमें, सती प्रथा, इसके साथ मुझे भी जला दे, मैं भी खत्म हो जाना चाहता हूँ। So like that, he is this is suffering। वो सफरिंग को देख चुका, बहुत कम उम्र में सफरिंग को देख चुका। ये यकसुई है, स्टेलमेट, ये भी एक पोइट्री है, उसी जमाने की है। ये अपनी महबूबा से कह रहा है, और ये ईशर कौर की कहानी है, उसी कॉलेज में इसके बाद जो दूसरी मोहब्बत है। ईशर कौर was not agreeable, she was agreeable but she was too worried about her family accepting or not accepting साहिर लुधियानवी, क्योंकि मुसलमान था, तो वो कहीं जा नहीं रही बात, तो देयरफॉर यकसुई, बात किधर भी नहीं जा रही। तो लिख रहा है, मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब, ये थोड़ी सी उर्दू है। ये जो होलीनेस है ना, ये कल्चर का फरेब है। It has far-reaching consequences what he's saying. This young kid is saying, who's not even 20, he's saying जो तकद्दुस है, जिसको हम होलीनेस कहते हैं, ये कल्चर का एक कंस्ट्रक्ट है। आई थिंक दैट इज द करेक्ट वर्ड। मैं समझता हूँ तकद्दुस को तमद्दुन का फरेब, तुम रसूमात को ईमान बनाती क्यों हो। ये जो अभी रस्मों की बातें आप करेंगी आगे, लेकिन ये जो रिचुअल्स हैं, इसको तुम ईमान क्यों बना रही हो? व्हाई आर यू मेकिंग इट अ वे ऑफ लाइफ? दीज आर जस्ट रिचुअल्स। जब तुम्हें मुझसे ज्यादा है जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में यूं अश्क बहाती क्यों? अगर तो है ही नहीं कुछ लेना, तो फिर मतलब वाई वरी। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। ही सेइंग कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, है ना। अब ये एक ट्रांजिशन का फेज है, मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। ये पोइट्री है, इसका नाम है किसी को उदास देखकर। मैं अपने रूह की हर एक खुशी मिटा लूंगा, मगर तुम्हारी मसर्रत मिटा नहीं सकता। मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हूँ, मगर ये बारे मसाइब उठा नहीं सकता। तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, निजात जिनसे मैं एक लहजा पा नहीं सकता। He's saying my worries are bigger than you, bigger than relationships. This is a transition that I'm saying। बहुत, अभी बच्चा बहुत छोटा है, मगर वो समझ गया है कि दुनिया में और चीजें भी हैं। और देखिए फिर चेंज हो रहा है। ये मेरे गीत में उन्होंने लिखा है, ये अगेन बहुत लंबी पोइट्री है, बट ऑफ द पोएम्स दैट ही इज राइटिंग, ये वो ही मैं बात कर रहा था। उसकी एक फिलॉसफी जो डेवलप हो रही है, वो कन्वे कर रहा है अपनी पोइट्री में, और बाद में फिल्मों में भी उसको डाल रहा है, बिल्कुल बिना हिचक के डाल रहा है। ये फिल्मी गाना नहीं है, मगर फिर भी मेरे गीत। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है,
कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, हुकूमत में मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके तशद्दुद को, उसको जो जो डराने का काम, ये उसका जो भी टेरर है, और इमारत के जो अमीर लोगों के जो ये घमंड है, इसको मैं देखता हूँ। हुकूमत के तशद्दुद को, इमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहंशाही खजानों को, तो दिल ताब नशात बज़ में इशरत ला नहीं सकता, वे खूबसूरत नहीं ला सकता। मैं चाहूं तो भी ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता, मैं वो गाने गा ही नहीं सकता जिससे तुम्हें नींद आ जाए। दिस इज माय लिमिटेशन। और ये थॉट है, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन who's आई थिंक ट्रांसेंडेड और bypassed past romance and he's gone into worries about a bigger world। तो वो दीदी का गाना है तुम मुझे भूल भी जाओ, तो वो आप गाएंगे। ये जो दीदी का गाना है ये बहुत अच्छी तरह से आपको बताता है दैट ही इज सेइंग ही इज गोइंग टू a bigger concern। सी सी तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारे हुए इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। These were also years of great political ferment, which we'll talk about later in the conversation. And Sahir was very influenced by leftist ideas also. But to come back to these new concerns of his, how did he articulate all this, his new calling? What were exactly these new social concerns? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। ये उस पे हम जाएंगे जो उनका 3 साल का पीरियड है। दिस इज आई एम सेइंग 1941 टू 1944 व्हेन हिज एज इज 20 टू 23। इनको गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से निकाल दिया गया था। देयर इज सम रिसर्च अबाउट इट। ईश्वर कौर से इन्होंने अकेले में मुलाकात कर ली थी, दैट परहैप्स वाज द रीजन। बट ही हैड आल्सो बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रिपीटेडली इन द कॉलेज। तो एक कोई जमाना था जब कोई कलेक्टर साहब आए हुए थे, इनको पोएट्री गानी थी अपनी वहां पे। ही रिफ्यूज्ड टू सिंग, ही सेड कि मैं गाऊंगा ही नहीं। ही जस्ट एब्सटेन्ड, ही वाज नॉट, ही वेंट मिसिंग। तो ये कॉलेज के अंग्रेजों का जमाना था, 1942 आप समझ लीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, तलखियां थी पॉलिटिकल। तो so he was not really acceptable to the college authorities, and then there was this whole affair, etc. तो वो छोड़ना पड़ा कॉलेज इनको। और उसके बाद he went to Lahore, because Lahore, you as you can imagine, वो लुधियाना से बहुत बड़ा सेंटर था, कल्चर का, लिटरेचर का, हर चीज का। तो वहां चले गए, वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। वहां अदब ए लतीफ नाम के एक पेपर के एडिटर बन गए थे। उसके एडिटर भी चेंज होते रहते थे, तो इतना बड़ा वो मुकाम नहीं है, बट नेवरदीलेस के बहुत कम उम्र में ये हमने जिक्र नहीं किया कि इतनी, मतलब सी ही इज द सन ऑफ अ जमींदार एंड सताई हुई माँ का बेटा है। उसकी इतनी उर्दू उसको कहाँ से आ गई, इतनी वोकेबलरी कहाँ से आ गई, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है।
क्योंकि वो माहौल तो था नहीं, उस तरह के लिटरेरी माहौल में पैदा नहीं हुए थे, सब खुद कुछ ही खुद किया था। आगा अशर कश्मीरी के बड़े नाटक उस जमाने में होते थे, वो जाके देख लेते थे। और इनके एक टीचर हैं फैयाज हरियाणवी के नाम से उनका जिक्र होता है, ही वाज हिज क्लास टीचर, ही वाज आल्सो हिज मेंटर, बट ही वर्कड हार्ड टू ये बॉर्न पोइट है, ये हेरिडेटरी पोइट नहीं है, ये बॉर्न पोइट है। तो वहां फिर लाहौर चले गए थे, जहां पे फिर तल्खियां पब्लिश हुई थी। 23 वाज हिज एज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द ईयर 1944 व्हेन दैट, वो है किताब यहाँ रखी, मैं आपको दिखाऊंगा। यू वर आस्किंग अबाउट फाइंडिंग हिज न्यू कॉलिंग, कि उन्होंने क्या किया और कैसे उसको किया। तो ये मेरे गीत तुम्हारे हैं तल्खियां में छपा हुआ है, उस किताब में है, मैं उसमें से थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। बट वी आर नाउ नोटिसिंग, जो आपने बात की, एक 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 क्लियर पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है, ये मेरे गीत तुम्हारे हैं से, ही सेइंग माय सॉन्ग्स आर योर सॉन्ग्स, ही ये दहकानों से कह रहा है, किसानों से कह रहा है। आज से है मजदूर, ये लंबी कविता है, मैं एक्सर्प्ट पढ़ रहा हूँ। आज से है मजदूर किसानों, मेरे गीत तुम्हारे हैं। फाका कश इंसानों, मेरे जोग बहाग तुम्हारे हैं। जब तक तुम भूखे नंगे हो, ये नगमे खामोश न होंगे। जब तक बेआराम हो तुम, ये नगमे राहत कोश न होंगे। मुझे मुझको इसका रंज नहीं है, लोग मुझे फनकार न माने। फिक्रो फन के ताजिर, ताजिर मीन्स बिजनेसमैन, ये जो आर्ट के बिजनेसमैन हैं, फिक्रो फन के ताजिर मेरे शेरों को अशार न माने। मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ही एक्चुअली टोन डाउन हिज वोकैबुलरी। ये अर्पण शब्द तो बिल्कुल हिंदी का शब्द है, ये यहाँ पे आ गया है, अचानक आ गया है। और बाकी भी उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी मैं उतनी मतलब आप मैं अपनी पोइट्री को टोन डाउन कर रहा हूँ, उसके आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें, तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। नाउ ही इज नॉट राइटिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज राइटिंग फॉर हिज पीपल। आज से मेरे गीत तुम्हारे दुख और सुख का दर्पण है, ये दर्पण भी हिंदी का शब्द है। आज से मेरे गीत तुम्हारे दुख और सुख का दर्पण है, ये बड़े मशहूर है। उसमें तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा। तुम परचम लहराना साथी, मैं बरबत पर गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। टोटल ट्रांजिशन इन द। अच्छा, अब जिस समाज में वो रह रहा है, कई बार कहते हैं ना पोइट बहुत दूर चले जाते हैं चांद की और सितारों की, ये लुक एट वेयर ही इज हेडिंग नाउ। ये कुछ बातें हैं, अगेन तलखिया में है, कुछ बातें हैं। अदबार मीन्स गरीबी। देश के अदबार की बातें करें, अजनबी सरकार की बातें करें, अगली दुनिया के फसाने छोड़कर इस जहन्नुम जार की बातें करें, हो चुके औसाफ पर्दे के बयां शाहिद बाजार की बातें करें, दहर के हालात की बातें करें, इस मुसलसल रात की बातें करें। शैल वी टॉक अबाउट दिस एंडलेस नाइट। इट इज इट इज वेरी वेरी पावरफुल पोइट्री। इसकी पराकाष्ठा, लोग कहते हैं, मैं कुछ हद तक इत्तेफाक भी रखता हूँ उससे, वो पोइट्री है जो ताजमहल के नाम से जानी जाती है। सब जानते हैं ताजमहल पोइट्री को, बहुत जानते हैं। जो नहीं जानते हैं अब आज जान जाएं उसको। ताजमहल was considered to be a monument of an emperor's love for his wife, है ना। फीलिंग बहुत अच्छी अच्छी बात है। एक शहंशाह जो है अपनी बेगम की याद में उसने एक इमारत तामीर की है, बड़ा अच्छा थॉट है। और कितनी सुंदर इमारत तामीर की है उसने, इतनी सुंदर कि मतलब आज भी उसकी कोई सानी नहीं है। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही इज सेइंग देयर इज नथिंग इन इट। वो कह रहा है मैं एस्थेटिक्स की बात ही नहीं कर रहा। ये पोइट्री उन्होंने लिखी, ताजमहल उन्होंने विजिट नहीं किया था, ये एक अलग लंबी कहानी है। बट ही सेड आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू, आई डोंट नीड टू। मैं उसकी एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। एंड ही दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, और आप समझ ही जाएंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, ताजमहल की बात कर रहा हूँ। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दिस इज नथिंग, दिस इज क्रैप, है ना। उसने कहा मुझे इसको देख के क्या करना है। आपने 50% 70% रेवेन्यू टैक्स लगाए हुए किसानों के ऊपर, उनकी आधी फसल आप ले जाते हो, उसके बाद आपने ये बनाया, ये मेरे किसी काम का नहीं है। It is nothing। मैं एक
थोड़ी उनकी दूसरी पोएम पढ़ना चाहता हूँ जो इतनी मकबूल नहीं है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। 1943 में बंगाल में फेमीन पड़ा था। क्या कहते हैं फेमीन को, क्या कहते हैं? हाँ, अकाल, अकाल, नॉट सूखा, अकाल, अकाल। मैन मेड अकाल। हाँ, अनाज तो था मगर लोगों तक नहीं पहुंचा, कहीं और ही पहुंच गया। he reacted in 1943, he reacted। वो थोड़ी लंबी पोइट्री है, मैं आपको पढ़ता हूँ, मजा आएगा। जहान है कोना is old world, he is constantly complaining against the old world। जहान है कोहना के मफलूज फलसफा दानों, मफलूज मतलब जिसमें फालिज गिर गया, जो पैरालाइज्ड है, जो ये पैरालाइज्ड फिलोसफर्स ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ज्यादा नहीं आपको समझाऊंगा, टाइम चले जाएगा। जहान है कोहना के मफलूज फलसफा दानों निजाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं, ये शाह राहें इसी वास्ते बनी थी क्या? ये शाह राहें इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे? जमीन है क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ल आदम व हवा बिलक बिलक के मरे? मिले इसी के लिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। जमी की कुव्वते तख्लीक के खुदाबंदों, मिलों के मुंतजिम सल्तनत के फर्जंदों, 50 लाख फसुर्दा गले सड़े ढांचे निजाम जर के खिलाफ एहतजाज करते हैं। खामोश होठों से दम तोड़ती निगाहों से बशर बशर के खिलाफ एहतजाज करते हैं। He has chosen to write something that was happening in a place which is very far from Lahore, but it did concern him, it did trouble him. So maybe it's not surprising that Sahir was an atheist, wasn't he? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। Were there any other reasons why he was a disbeliever? जी, आपने बहुत मौजूद और बहुत अच्छे मौके पे पूछा, क्योंकि अभी मैंने बंगाल, इतने लाखों लोग मर जाएं तो ये सवाल उठना लाजमी है। मतलब कोई सेंसिटिव आदमी पूछेगा कि भाई अगर एक इफ देयर इज अ जस्ट गॉड एंड देयर इज अ काइंड गॉड, देन व्हाई दिस काइंड ऑफ अ थिंग शुड हैपन। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग हिम क्वेश्चन। उनकी अपनी जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी भी नहीं थी, तो आई थिंक दैट इज वेयर आल्सो इट इज कमिंग फ्रॉम। बट ये मुझे सोचने दे, ये इस मुझे सोचने दे पे ये खत्म भी होती है। लंबी पोइट्री है, एक सब पढ़ रहा हूँ, बट इसको अच्छा समझाए, अच्छी तरह समझाएगी, इसको सुनिए। लहलाते हुए खेतों पे जवानी का समा, लहलाते हुए खेतों पे जवानी का समा, और दहकान के छप्पर में ना बत्ती ना धुआं। ये कंट्रास्ट की पोइट्री लिखते हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ये वो वाली। लहलाते हुए खेतों पे जवानी का समा और दहकान के छप्पर में ना बत्ती ना धुआं, ये फलक बोस मिले दिलकशो सीमी बाजार, ये पॉजिटिव है, ये ब्राइटनेस है। ये गलाजत पे झपटते हुए नादार, गंदगी खाने वाले लोग, ये गरीब लोग जो गंदगी खा रहे हैं, झपट रहे हैं उस पे। ये गलाजत पे झपटते हुए नादार, दूर साहिल पे वो शफाफ मकानों की कतार, सरसराते हुए पर्दों में सिमटते गुलजार, दरो दीवार पे अनवार का सैलावे रवां, ब्राइटनेस है, बत्तियां हैं चारों तरफ, जैसे एक शायर के मदहोश ख्वाबों का जहां। ये सभी क्यों है, ये क्या है, मुझे सोचने दे, कौन इंसान का खुदा है, मुझे सोचने दे। So that is what he's saying. He's saying there's so much, what is inequality, you can say, there is so much light, so much darkness. ये क्यों हो रहा है? I want to think about it, type of a thing. फिल्मों में, अब फिल्में क्योंकि मास मीडियम हैं, तो फिल्मों में इस तरह की शायद प्रोड्यूसर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और शायद पब्लिक भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो he is not writing this in films। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2-3 मैं आपको फिल्मों के बहुत छोटे-छोटे पैरास बताऊंगा। फंटूश एक पिक्चर है, आप इस गाने को यूट्यूब पे देखिएगा, आज रात को देखिएगा। देवानंद ने अफ्रीकन ब्लैक बना हुआ है, उसमें आपने कभी नहीं देखा होगा। देवानंद वाज सो कॉन्शियस ऑफ हिज पर्सनैलिटी, बट ही इज, ये बड़ा अजीब सा गाना है ये, एक्चुअली ये मजाहिया गाना है, इट्स अ फनी काइंड ऑफ अ सॉन्ग। तो ये देवानंद गा रहा है ये गाने को, महमूद भी उसमें नाच रहा है उस गाने। फंटूश पिक्चर। वाह रे ऊपर वाले तेरे खेल निराले, गधों को हलवा बांटे भैंसों को शाल दुशाले, बुरों के मुंह में शक्कर और भलों के मुंह सर काले, देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता, नंग दड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता।
ही इज यू नो सटायर, बट ऊपर वाला। और फिर सुबह होगी में एक और गाना है, वो तो संजीदा गाना है, मगर आपने सुना होगा वो गाना, नहीं सुना होगा तो आज सुनिए जरूर। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं बम, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। ध्यान ही नहीं दे रहा हमारी तरफ। ये थोड़ी सी मुश्किल उर्दू है, आप हो सकता है कई इसके ना समझ में आए, इसको ट्रांसलेशन करने बैठूंगा बहुत देर लग जाएगी, बहुत सारे कल्चरल रेफरेंसेस हैं, मैं फिर भी जल्दी से पढ़ देता हूँ, हमारे पास है ना अभी 15 मिनट तो और है। पढ़ देता हूँ इसको। तराए नौ में है, न्यू फाउंडेशन। इबलीस, अब बहुत कम लोग जानते होंगे, इबलीस इज सेटन, बट ज्यादा नहीं बताऊंगा। इबलीस खंदाजन है मजाहिब की लाश पे, आपको समझ आ गया ना, ही इज डिराइसिवली लाफिंग एट द बॉडी ऑफ द रिलीजन्स ऑफ ऑल। इबलीस खंदाजन है मजाहिब की लाश पे, पैगंबरान दहर की पैगंबरी की खैर, सहने जहां में रक्स कुना है तबाहियां, आकाए हस्त बूद की सनअत गरी की खैर, शोले लपक रहे हैं जहन्नुम की गोद से, बागे जिना में जलवाए हूरो परी की खैर, इंसान उलट रहा है रुखे जीस्त से नकाब, मजहब के एहतमाम फसूं परवरी की खैर, इल्हाद कर रहा है मुरतब जहान नो। इल्हाद इज एथिज्म, डिसबिलीफ। इल्हाद कर रहा है मुरतब जहान नो, नया जमाना, दैरो हरम के हील गारिद करी की खैर। थैंक गॉड सेव यू ऑल। और ये इस पार्ट का लास्ट है विच आई थॉट यू मे लाइक टू हियर। 26 जनवरी है, बाद में लिखा गया है, नेचुरली पोइट्री का नाम ही 26 जनवरी है। ही इज हर्ट व्हाई पीपल आर फाइटिंग ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर और नायाब क्या हुए। ये बीमारी का सॉल्यूशन ही नहीं। हर कूचा शोलाजार है, हर शहर कत्लगाह, यक जहती ए हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफुक पे वो महताब क्या हुए। मुजरिम हूं मैं अगर तो गुनाहगार तुम भी हो, ए रहबरान कौम खताकार तुम भी हो। वी आर ऑल इन इट टुगेदर, नोबडी कैन एस्केप द ब्लेम। तो ऐसा सोच। It's interesting that though Sahir was, he didn't believe in God, he was an atheist. जब मौका आता था फिल्मों में तो उन्हें बहुत सुंदर भजन भी लिखे हैं. I think in Neel Kamal he wrote a beautiful bhajan, रोम रोम में बसने वाले राम. In films, did he offer any, I mean, an understanding of religion? His understanding, Allah Tero Naam to, of course, in हम दोनों. अल्लाह तेरो नाम तो शायद आप अदा अदा करेंगी, बट आपने जो ये पूछा कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी रिलीजन की, तो सिनेमा में उन्होंने ये क्या किया है, ये एक शख्स है जो कह रहा है कि मैं खुदा को मानता ही नहीं, ये है ही नहीं। और फिल्मों में तो आप इतना ब्लंट भी नहीं हो सकते क्योंकि लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तरह तरह के लोग हैं। तो ही हैज एक्चुअली एडॉप्टेड अ सेक्युलर पोस्चर, जो उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू जी और पूरे कांग्रेस का और पूरे देश का जो था, वो एक तरह से दैट वाज द वे वी वर लिविंग इन दैट एरा। तो उसने ये बहुत अच्छा है, ये इश्क इश्क है, ये गाना है बरसात की रात पिक्चर का, ये बड़ा लंबा गाना है, 7-8 मिनट का गाना है, कमाल का है। मैं उसको थोड़ा पढ़ रहा हूँ आपको। ये अब बातें अभी भी, मतलब यू कैन टेक ऑब्जेक्शन टू दिस व्हाट ही इज सेइंग। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हफीज इश्क है, कुरान इश्क है। गौतम और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे नूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। He exalt you to the level of Godhood himself. आप इश्क कीजिए, आपको भगवान बना देगा। हम कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा तक का सफर, एग्जैक्ट सेम थॉट है। आप जो भी हो, साख से बना हुआ इंसान है, वो बन जाएगा भगवान अगर इश्क करेगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये बात कह रहा है। धर्मपुत्र पिक्चर में 1961 में, वो आप शायद बता पाए, यश चोपड़ा की पिक्चर थी। उसमें उसने लिखा है, काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की जात से है। ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। काबे में रहो या काशी में, निस्बत तो उसी की जात से है।
तुम राम कहो या रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है। दिस इज दैट नेरोवियन सेकुलरिज्म थॉट। ये मस्जिद है, वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये मुझे बड़ा मजेदार इसलिए लगता है कि मैं कह रहा हूँ, ये कोई और नहीं कह रहा। इफ इट इज रॉन्ग देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। ही सेइंग ये मस्जिद है, वो बुत खाना, ये मंदिर है, मस्जिद, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। मैं ये रीड कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि मान यार जो मानना है, मैं तो नहीं मानता किसी को, बट तुम ये मानो या वो मानो, सब ठीक है, तुम करते रहो, तुम अपना काम करते रहो, टाइप ऑफ अ थिंग। But this is articulated, I think, in either better language, and not such Urdu language, but in Hindi language, lovely Hindi language he has written. ये चित्रलेखा में एक गाना है जो आपको बहुत पसंद है, और आप उसको अदा भी करेंगी। बट यू वांटेड टू से समथिंग अबाउट his relationship with the Chopras, और चोपड़ा के साथ। नहीं, आप पहले गाइए, let's hear the song. I think we are eager to hear. जी। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना ना सके, उस लोक को भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। इस फिल्म में मैंने देखा जब वो पलायन करते हैं अशोक कुमार, तो मीना कुमारी कैसे कहती है, जो दूसरा स्टेंजा में उन्होंने बोला है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब वो आ गए हैं वहां पे, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, मुझे 3 मिनट और दे दीजिए, देन वी हैव जस्ट वन मोर थिंग, वन मोर पैरा। आप चोपड़ा जी के बारे में बता रहे नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि हिज मोस्ट फेमस सॉन्ग इज ऑफ कोर्स तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, फ्रॉम धूल का फूल, which was a film by Yash Chopra, and Sahir had a long relationship with Yash Chopra. Yash Chopra ने अपनी हर फिल्म में उनको लिया है, एंड हम बहुत 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 अच्छे गाने दिए हैं, वक्त के गाने, हाँ, दाग का वो अभी ना जाओ छोड़ के, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट है बंद करने के लिए, जाना ही पड़ेगा, बट मे बी वी कैन आप जस्ट सच में जाना चाहते हैं या थोड़ा सुनना चाहते हैं? तो सुनिए, आप वक्त को छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जैसा लोग, ठीक है, ओ ये डू 10 मोर मिनट, जैसा लोग सुन सकते अभी सर ने बोला इतने सारे जुल्म और इतने सारे उन्होंने सहे, लेकिन कहीं-कहीं वो बड़े रोमांटिक जो उन्होंने गाने लिखे हैं। एक गाना है, अच्छा तो हम चलते हैं, कितना सीधा-सीधा आपने बताया था, और आनंद बख्शी का है। लेकिन एक है, अभी ना जाओ छोड़ के, इतनी इतनी डेलिकेसी है इस गाने में।
जो इशारों-इशारों में साहिर जी बात कर लेते थे। वैसे अब कहीं रोमांटिक गाना आई थिंक किसी ने यस, नहीं यस। लिखा। नहीं, इतना रोमांटिक किसी ने नहीं लिखा। रुक ही जा सकते हैं, तो वो कभी ना जाओ छोड़ के। सी अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। देशवीर जवानों को फिर उनको भी डाला, then we will see. तो अब 7 नहीं, मैं एक्चुअली सवाल तो बहुत हैं लेकिन क्योंकि वक्त कम है, let's come to again Sahir as people's poet and the revolutionary poet. What were his views on India's colonial enslavement? Because India was under the heel of the British at that time. So, उनका जो, you know, how did अ, he? सर Uh, बस मैम एक निवेदन है, मैं चाहूंगा मैं इस डिस्कशन में ऑडियंस को भी पार्ट बना लें क्योंकि आखिरी के 10 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं, तो अगर हम कुछ 2 सवाल हमारी Sure. ऑडियंस से ले सकें। So then let's open it to the audience. सबसे पहले हाथ यहाँ से खड़ा हुआ और उसके साथ-साथ अच्छा। सक्सेना जी का भी सवाल था, उसका भी आप जवाब साथ-साथ में दे सकते हैं। पूनम जी का जो सवाल था, पूनम जी आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए और उसके साथ सवाल वही था, कंप्लीट था। अच्छा, ठीक आई है। थिंक जी, जी। माइक पहले माइक हाँ, हाँ। ये अभी अभी 2 मिनट रुक जाओ, ये रख दो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। सो नहीं, ये जो पूनम जी ने बात कही ना, ये अब अपने भजन के बारे में उन्होंने इतने अच्छे भजन, इतने सुंदर भजन लिखे हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि रेवोल्यूशनरी फर्वर या उनका पैट्रियोटिज्म, कमाल का था वो, उसमें पीछे नहीं थे। मैं इसलिए ये चाह रहा था कि आई विल डू दिस वेरी क्विकली। ये एक धर्मपुत्र का गाना है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, आपने सुना नहीं होगा, तो मैं इसलिए इसको पढ़ना चाह रहा था। ये उन्होंने धर्मपुत्र में लिखा है, 61 में बनी थी, मगर ये है उसकी आजादी के मूड का। तो इसमें ये कह रहा है, अंग्रेजों से कह रहा है, पोइट, फिल्म का गाना है, ये सौदागर जो इस धरती पे कब्जा करके बैठे हैं, हमारे खून से अपने खजाने भर के बैठे हैं, इन्हें कह दो कि अब वापस करें सारे खजानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों।
अब ये बहुत अच्छा है, जो इन खेतों का दाना दुश्मनों के काम आना है, जो इन कानों का सोना अजनबी देशों को जाना है, तो फूंको सारी फसलों को, जला दो सारी कानों को। वाह। सब हमारा सामान वहां जा रखा है। उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को, बहुत झेली गुलामी की बलाएं अब न झेलेंगे, चढ़ेंगे फांसियों पर गोलियों को हंस के झेलेंगे, उन्हीं पर मोड़ देंगे उनकी तोपों के दहानों को, उठो उठकर मिटा दो तुम गुलामी के निशानों को। दिस इज भगत सिंह। इफ दिस इज नॉट भगत सिंह, हु इज भगत सिंह? तो बहुत उन्होंने पैट्रियट के गाने लिखे थे, और ये गाना नया दौर में है। ये नया दौर बहुत इंटरेस्टिंग है। कल गुरुदत्त के सेशन है, मौका लगे तो आइएगा। लेकिन गुरुदत्त प्यासा में एक गाना है जो बड़ा, मतलब गवर्नमेंट कह रहा है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उस 57 में ये भी पिक्चर बनी है, और ये बड़ा अच्छा गाना है जो आप गाएंगी और हम सब लोग शायद साथ में गाएंगे। ये गाना है, लोग इसको एसोसिएट नहीं करते ज्यादा साहिर लुधियानवी के साथ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, Yes. मस्तानों का, इस देश का यारों, क्या ये कहना देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये गाना थोड़ा जी, गाएंगे, जी। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल और देन वी विल डू क्यूइंग। ये हर बिल्कुल। शादी में बजता है ऐसा गाना ये वाला। और उसके बाद नीना जी मेरी पसंद का और रिक्वेस्ट का एक गाना गाएंगी, वक्त से आगे भी जाने ना तू। जो सर ने बोला इसको तो आप लोग भी ज़रूर गाइएगा मेरे साथ। सब साथ में। बहुत जोश तभी आएगा। हो आय, 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 आय। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यार, ओए इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ, 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 यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक, यहाँ गाते हैं राजे, ओए यहाँ गाते हैं राजे, मस्ती में झूठे बस्ती में। दिल भर मुश्किलें पीछे जाए। Should we open it to the audience? Yes, just two questions. सबसे पहले वहां से हाथ खड़ा हुआ था। I just had one question. Thank you for an awesome session, really. But because of his poetry, the depth of his poetry, were ever situations created in movies to accommodate his poetry and his written works? हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा, एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन आल्सो। Sahir became very powerful by 1955, 96, 56 and definitely by 57. तो इन्होंने जो पहला गाना गाया था, छोटा जवाब दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, ठंडी हवाएं लहरा के आए, ये एस डी वर्मन ने कंपोज कर दिया था। उन्होंने बोला इसमें जो फिट करना है फिट कर दो, जनरली यही तरीका होता था। बट बाय 57 साहिर had become so big that he said कि एक्चुअली एस डी बर्मन से इसी बात पे वो खत्म हो गई थी जो पार्टनरशिप थी, कि उन्होंने कहा कि मैं पोइट्री लिखूंगा, तुम लोग उस पर कंपोज करोगे। So from 57 onwards, he was able to get his way. And there's a lot of I'm saying his philosophy. He didn't want to, sit. अब मतलब कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मगर मजरू ने भी बहुत अच्छी रेवोल्यूशनरी पोइट्री लिखी है, लेकिन फिल्मों में नहीं लिखी। उनको उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं पोइट अलग हूँ, लिरिसिस्ट अलग हूँ। लेकिन शायर ने कहा नहीं, ये मैंने लिखी है, ये फिल्मों में।
तो वो जो आप जिक्र कर रही थी, तुम मेरे साथ रहेगा मुन्ने, वो पूरी मतलब त्रिशूल पिक्चर तो साहिर की कहानी ऐसा लग रहा है, और उनकी दोस्ती इतनी थी, यश चोपड़ा और साहिर, तो he got his way. Yeah, I don't know if that answered your question. Any other question, Ms. Sukrita? One last. वहां से हाथ खड़ा हुआ है. Last question. I just wanted to know one very intriguing question. Is it imaginative or just I don't know? What was Sahil's relationship with Amrita Amrita Preetham? Preetham. ये सवाल हम सब Want के to दिमाग में know. था. And if I may supplement that with Imroz, so what was the love triangle? What really happened? Has anything been written about it? It will be very interesting. तो छोटा, क्योंकि समय नहीं है, रसीदी टिकट पढ़ लीजिए, बस, और क्या करना. I think she was in love with him, and it was a relationship of silences. कुछ ज्यादा जाहिर नहीं किया. और वो ट्रायंगल नहीं था. नहीं, triangle तो नहीं था. ट्रायंगल नहीं था. Imrose knew about it, encouraged it. Imrose अमृता जी के पीछे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने साहिर का नाम उनकी बैक पे लिखा. जी. And he enjoyed doing it. और Yeah. वो जो कैलीग्राफी होती है उर्दू की, तो दोनों ही एंजॉय कर रहे थे इकट्ठे साहिर. जी. सो ये किस हद तक वो मेंटल था, मतलब प्लेटोनिक लव था, ये इंट्रीग ही रहेगा. Yeah, ये इंट्रीग history. रहेगा. हाँ, ये और ऐसा रहे तो ही अच्छा है, इंट्रीग ही रहे तो अच्छा है. देखिए, Amrita Preetham has written how she used to smoke the cigarette stubs that Sahir left behind in the ashtray. And She Poonam, felt close to him. Poonam, there was a song also which sort of sums it up from Sahir's side, right? Which one is that? चलो एक बार फिर से. नहीं, No, उसमें no. कहीं पर एंड है ना कि जब इस तरीके का बहुत बढ़िया खूबसूरत मोड़ पे मोड़ पर उसको छोड़ दिया जाए. So would you like to just sing a few lines of गुमराह that, का Tina गाना ji? है. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. गाना मुश्किल होगा. अच्छा, I think इन्होंने उसको मुझे लगता तैयार है नहीं कि किया है. पब्लिक से गवाना ही अच्छा रहेगा. आप गाइए. आप गाइए. वो बहुत अफसाना सुंदर है जिसे ये, बहुत सुंदर. अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, हाँ, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके मोड़ पे. छोड़ देना चाहिए. और मेरे ख्याल से ये इट्स अ शेर. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. कौन सा स्टेप? तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर. ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन. उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर भूलना अच्छा. चलो एक बार फिर से अजनबी बन. थैंक. एक्चुअली मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ. नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं. एंड आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत मोड है जिसपे इस सेशन को हम मैं चाहूंगा ये बहुत जीवन साथी है मेरे, और सच आहा, बहुत साथ निभाया इन्होंने. वाह, लेकिन सिंगिंग कपल. she really wants to sing, and I really want to hear at least 4 lines of this song.
लास्ट ऑडियंस की फरमाइश भी शुरू हो रही है। आप जी, जी, हम नहीं चाहते आप बाहर जाके हमें बुरा-भला बोलें, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। पर जो गाना आप गाना चाह रहे हैं। बस एक जी। जी, जी। लगता है बोरिया बिस्तर लाना चाहिए था यहाँ पर। क्या? महफ़िलें होती ही ऐसी हैं। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तू। अनजाने सावियों का राहों में डेरा है, अनजानी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है। जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। जो भी है बस यही एक पल है। बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूब रहा ये सेशन। थैंक यू सो मच। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर राघव चंद्रा to felicitate our guests for this very, very engaging session with the BLF Memento. Yes. Padma Shri Bhuri Bhai Ji, a renowned Bhil artist, has created this artwork for BLF 2025 depicting the connection between nature, earth, the human being, and the environment, the secularity inherent and imperative to our existence. Thank you so much, जोरदार तालियां पंकज जी के लिए, Yes, yes. जिन्होंने बड़ी ही सरलता, बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ सारी कविताएं लेख यहाँ पे पढ़े, हमें समझाए, और साथ में पूनम जी के लिए भी और नीना जी के लिए भी उनकी मधुर आवाज के लिए। किसी महान शायर ने कहा है कि जो महफिल होती है उसमें थोड़ी प्यास छोड़ देनी चाहिए, तभी तो वो लौट के आएंगे। तो आप तो कल इसलिए लौट के आइएगा। इसलिए कल लौट के आएगा। आपको हम एक ही शर्त पे आज यहाँ से जाने देंगे कि कल हम आपको देखेंगे, आपसे रूबरू होगा। इस शर्त पे we mark the end of day one of the Bhopal Literature and Art Festival. Thank you so much for being with us. Tomorrow 11 a.m. मैं चाहूंगा हम सब फिर से एक दूसरे के सामने हो और ऐसे ही लिटरेचर का, साहित्य का, कलाओं का आवाहन करें, उन्हें अपने भीतर उतारें, उनको सुने, समझें और सीखें। Thank you so much, everybody. This is Siddharth Jain and Parul signing off for today. We will see you tomorrow.
We have lots of sessions lined up for you. Good night, everyone.